Hello students, today we'll learn data transfer instructions. In microcontroller, the move instruction is very powerful instruction. With help of the move instruction, we can transfer data from register to register or from memory to register or from memory to memory. Here in this first slide, I listed the data transfer instructions used by microcontroller 8051. First is the move instruction. In this lecture, our concentration will be on the move instruction. Other instruction we will take in our next lecture. The move instruction is used for data transfer between registers and memory. We can also transfer immediate data to memory or immediate data to register. Another instruction is MOVC instruction. MOVC instruction is a special instruction which is used to transfer data from code memory. Code memory means EEPROM. The EEPROM may be internal or may be external. In 5.1 there is a 4K EEPROM inside the chip. So we can transfer data from that 4K, or if we have connected external EEPROM, then we can transfer data from that to accumulator or accumulator. So most instruction is used to read from the EEPROM, read our code memory, right? So that is used whenever the reading of code is required. Another instruction is MOVX. This is also special instruction which is used to transfer data between accumulator and external memory, external RAM. The MOVC is a move code which is used for the code memory, while MOVX is used to read or write data into RAM, because RAM is a read-write memory, while EEPROM read-only memory. So we can read from EEPROM using MOVC, or we can write or read data using MOVX instruction. Here the RAM is external, because for internal RAM we have a move instructions. The next push and pop instructions are also available, which are used with the stack. So whenever we talk about the stacks, I will describe the push and pop instructions in detail. Right now we don't going into detail of push and pop instruction. Another instruction is XCH. It is exchange instruction, the exchange between the register and another register, or register and memory. We can use the XCH instruction. That is also we are going into detail into next lecture. Another is XCHD instruction. The difference, XCH instruction transfers the byte, while XCHD transfers a nibble, only half nibble. So let us see. The exchange instruction exchanges row of nibbles. જે બે વચ્ચે એક્સચેન્જ કરવાનું હોય એના રો ઓફ નિબલ એક્સચેન્જ કરશે. ઇટ વિલ એક્સચેન્જ ધ રો ઓફ નિબલ. મતલબ 5.7 અને 3.7 બે ડેટા હોય અને આપણે એકને રજિસ્ટરમાં અને એકને કેલ્ક્યુલેટરમાં યુઝ કર્યું હોય, અને ઇફ વી વોન્ટ ટુ એક્સચેન્જ XCHD ઇન્સ્ટ્રક્શન કરીને, તો એના રો ઓફ નિબલ એક્સચેન્જ થશે. 3.7 અને 2.7 છે તો 3 અને 2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ઉપરના નિબલ હાયર નિબલ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. રો ઓફ નિબલ એક્સચેન્જ થશે. So whenever this kind of operations are required, XCHD is used. Is another special instruction. Another instruction is swap. So swap instruction is exchanges the nibble. So we have three different exchange instructions. One is XCH, another is XCHD,
and another is swap. XCH exchanges the bytes. XCHD exchanges the lower nibble, while swap instructions used with accumulator only. Swap is used with the accumulator only and it exchanges its nibble. For example, accumulator has 57, then after these instructions, the content of accumulator is 75, from 57 to 75, right? So I hope the first slide is now well understood by you. So we are going on the next slide. Now in next slide, here whenever we use A, that is accumulator. In any instruction, if we use A, that is accumulator. If we use B, then it is a B register. If we use C, then it is carry bit. 8051 does not have C, D, E, H, L registers which are available in 8085. So here the register A and B are available, but the C, D, E, H, L are not available. So here whenever the C word is used, C letter is used, then the meaning of the C is carry bit. Sometimes instruction explains in a general manner. So for example, in some book it is written move A, Rn. So what is Rn? The Rn means you can use any register between R0 to R7. So Rn is a general name for R0 to R7, any of the register. Okay. So whenever we use word Rn, we interpret it like that. We can use here R0, R1, R2, any of the register up to R7. So these registers are general purpose registers. R0 to R7 can be used for data transfer. And we have 4 different bank of such registers. At a time we can use only one bank. And default bank is 0. If we have not selected any bank, then we are using bank 0, and that register is R0 to R7 of bank 0. So if you are not able to understand what is bank, you have to watch my previous video in which I have explained the architecture and memory map. So memory map part explains what is a different bank inside the microcontroller. Now if in a general manner, if word is used direct, instruction, for example, our instruction says move A, direct. So what is the meaning of direct? The meaning of direct is we can use an address of our internal RAM. The address range of internal RAM is starts from 00 and ends at 7F. So 00 to 7F we can use as direct. For example, move A, 35H. That means we have used 35H. What is 35H? It is an address of internal RAM memory. So content of 35H is copied into accumulator. Move A, 35H. Here the content of 35H is copied into accumulator. Now instead of 35, in a general manner we use move A, direct. Direct means any memory address we can use from 00 to 7F. After 7H, the 80 to FF, that memory is reserved for special function registers. So we have different special function registers: A, B, DPTR, SCON, PCON, TCON, like that. That is also I have explained in my previous video, that is architecture and RAM. The detail of SFR will be explained later, but this special function register has a name and address. For example,
the accumulator has name accumulator or A, and it also has address in 8051. What is the address of accumulator? The address of the accumulator is E0. So you can use A or you can use E0. For example, move A comma B, or you can use move E0 comma B. Both instructions are same. So we can use the address of the accumulator or name of the accumulator. Similarly, the address of the B is F0. So if I write move A comma B, or I can write move E0 comma F0. So both instructions are same. So here we can use the address of the register or name of the register. In the last video we have seen that the R0 to R7 also have address. So if it is a bank 0, then the address of the R0 is 00, and address of the R1 is 01, address of R2 is 02. Likewise, address of the R7 is 07. So in that case also we can use the addresses. Either we can use register name or we can use its address. @RI. Now here please note that @RI indicate indirect mode. Indicates indirect mode, indirect addressing. And RI, meaning of RI is R0 and R1. So only R0 and R1 register can be used in indirect addressing with move instruction. If you are using move instruction, then in indirect addressing R0 and R1 register can be used. R2 to R7 register cannot be used in indirect addressing. But not this only, R0 and R1 registers are not only registers which can use in indirect mode. DPTR and PC also can be used in indirect mode, but that is the MOVX instruction. If we are using MOVX instruction, then DPTR can be used in indirect mode, and PC also can be used in a indirect mode with MOVC instructions, right? So @RI meaning indirect mode, and R0 and R1 register can be used in indirect addressing. So we have to keep this in mind that whenever we use we cannot write @R2. We can write @R0 or we can write @R1. Now what is hash sign meaning? Whenever in any instruction there is a hash sign, meaning of that we are using immediate mode. For example, move A comma hash sign 25H. So the meaning of that instruction is we are copy 25 hexadecimal number into accumulator. So we are putting 25H into A. This is not memory location. 25H with the hash sign does not indicate a memory location. It indicates a data, 8-bit data. We have copied 8-bit data into A. If we compare it with the 8085, then we are using MVI instruction for that. If you recall, the MVI instruction means move immediate. So whenever we want to copy data into register, either we use MVI or MXI instruction. Instead of that, we have move instruction with hash sign. Move A comma hash sign 35. That means 35 is copied into A. We can also copy 16-bit immediate data into register. But keep in mind that if we want to copy 16-bit data in any register, then register size also should be 16-bit. We cannot copy 16-bit data into accumulator because the size of the accumulator is 8-bit. So in that we cannot copy 16-bit data. DPTR size is 16-bit. So we can copy 16-bit data into DPTR. For example, move DPTR comma hash sign 1234. So 1234 hex is a 16-bit data, and 1234 can be copied into DPTR. Any 16-bit number can be copied into DPTR.
So we use 16-bit data whenever we use a DPTR. Or we can copy 16-bit data into PC also. But program counter is always used by the microcontroller for pointing next address of the instruction. So normally that type of instruction is not used here. Normally we use 16-bit data with the DPTR. Okay. So we are going on the next slide. Let us revise. Direct means memory, @RI means indirect mode, #sign means immediate mode, RN means register, R0 to R7. So now we are going to on the next slide. Okay. Here some examples are given. Immediate addressing, move A, #sign 20H. So 20H, see the #sign I have pointed out with the red arrow. Here the 20H is copied into A. The first instruction is register addressing, move A, R0, where the content of R0 is copied into A. Content of R0, register R0 माथी डेटा A में कॉपी थसे. रजिस्टर R0 का डेटा A में कॉपी होगा. ठीक है. दूसरी इंस्ट्रक्शन में जो 20H है वो कॉपी होगा A में. तो accumulator contains 20H after move A, #sign. सो #sign आपको ध्यान में रखना है. #sign यूज़ करते हैं इमीडिएट मोड के लिए. तो 20H अगर आपको कॉपी करना है तो यूज़ #sign. Then the direct addressing example is given. In that move A, 30H is written. So here see that I have not used the #sign. So this is a direct mode. Direct mode indicates this 30H is an address. यहाँ पे जो 30H लिखा है वो एड्रेस है और 30H का कंटेंट A में कॉपी होगा. कंटेंट ऑफ 30H विल बी कॉपीड इनटू A. 30H कहाँ पे है? रैम में. इंटरनल रैम का एड्रेस है. तो इंटरनल रैम में जो डेटा है 30H के अंदर वो एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा. ठीक है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव A, @R0. हियर we have used @. So meaning of the @ is indirect addressing, right? It is indirect addressing, and we can use R0 or R1 register with the @. Here I have used R0 register. You cannot use R2 register or R3 register or R7 register. We have to use R0 or R1. So meaning of this instruction move A, @R0 is that content of R0 is an address and content of that address is copied into A. So content of content ऐसा मीनिंग है कि बॉक्स के अंदर जो बॉक्स है उस बॉक्स में जो है वो मुझे चाहिए. सो A बॉक्स के अंदर B बॉक्स है, B बॉक्स के अंदर जो है वो मुझे चाहिए. ठीक है. तो R0 के अंदर मान लो कि R0 के अंदर फॉर एजम्पशन 25 है. तो R0 के अंदर 25 है तो क्या एक्यूमुलेटर में 25 कॉपी होगा? नहीं, एक्यूमुलेटर में 25 कॉपी नहीं होगा. तो क्या कॉपी होगा? तो 25 के अंदर क्या है वो देखना पड़ेगा. तो मान लो कि 25 के अंदर 45 है तो दैट इज डेटा. तो 25 इज व्हाट? इज एन एड्रेस ऑफ रैम. सो रैम में जो 25 एड्रेस का लोकेशन है उसके अंदर अगर 45 है तो वो 45 एक्यूमुलेटर में आएगा क्योंकि R0 में 25 है. तो R0 क्या करता है? एड्रेस को पॉइंट करता है. दैट एड्रेस contains something which I required. Okay. In 8085 we used an example कि भाई मैंने जयेश के दोस्त को पैसा दिया है. अभी उस दोस्त का एड्रेस तो मुझे मालूम नहीं है पर मैं जयेश को जानता हूँ. तो जयेश से मैं बात करूँगा, भाई मैंने तेरे दोस्त को तेरे कहने पे पैसे दिए थे तो अभी तू जाके जयेश को बोल कि भाई मेरे पैसे वापस दे दे, तुझे दे दे और तू मुझे दे दे. ठीक है. तो दैट इज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. आप जयेश के दोस्त को जानते नहीं हो, जयेश को जानते हो. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किसको जानती है? R0 को. R0 में क्या है? एड्रेस. और एड्रेस में क्या है? डेटा. सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. ओके. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. In indirect addressing, R0, R1, DPTR and PC can be used. But DPTR and PC are normally used with the MOV-C, MOVX instruction, right?
R0 and R1 can be used with the move instruction. DPTR cannot be used with the indirect addressing in move instruction. MOVX instruction if we are using, then DPTR can be used. So again, @ used for indirect addressing, @ used for the immediate data. This is just for reminder, right? तो याद रह जाएगा आप इससे कि मैं बार बार क्यों इसको दिखाता हूँ. तो भाई पता है ना आपको कि आपके 3-4 बार मैं बोलूँगा तो आपको याद रह जाएगा. आप 3-4 बार तो ये वीडियो देखेंगे नहीं, अभी देखेंगे और बाद में शायद एग्ज़ाम के टाइम पे देखेंगे या फिर बीच में कोई दिक्कत आ गई तो देखेंगे. तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे 2-3 बार एक ही बात बताता हूँ, ठीक है. यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि भाई मूव ए कॉमा हैश साइन 20H. तो आपको मैं पहले बताया था कि हैश साइन का मतलब इमीडिएट डेटा होता है और यहाँ पे 20H विल बी कॉपीड इनटू ए. ज़्यादा एग्जाम्पल लेने का फ़ायदा क्या है, रिपीट करने का फ़ायदा क्या है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन पूरी समझ आ जाती है. और जब ये मूव इंस्ट्रक्शन आपको पूरी समझ में आ जाएगी तो ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे. आपको दूसरी इंस्ट्रक्शन में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें भी हैश साइन यूज़ होता है, उसमें भी @ यूज़ होता है. तो आपको पता चल जाएगा. Easily you can understand all other instruction if you understand more instruction well. मैं जो आपको ये बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा कि आपको अगर more instruction आ गई तो all other instructions you can easily understand. Now in next instruction you see that I written move R0 comma hash sign 50. That means I can copy इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर ऑल्सो. R0 में आप कॉपी कर सकते हो कोई भी डेटा. यहाँ पे मैंने H नहीं लिखा है, तो H नहीं लिखा है तो उसका मतलब हुआ ये जो 15 है वो डेसिमल नंबर है. अगर आप H लिखते हो तो वो हेक्साडेसिमल होता है और H नहीं लिखते हो तो वो डेसिमल नंबर जाता है. तो जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आप डेसिमल यूज़ कर रहे हो या फिर हेक्साडेसिमल, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर दोनों मोड को सपोर्ट करता है. आप डेसिमल नंबर भी लोड कर सकते हो या हेक्साडेसिमल नंबर भी लोड कर सकते हो. Okay. Now the third instruction is also of immediate mode. ये immediate mode के एग्जाम्पल है. यहाँ पे मैंने लिखा है move P0, hash sign 07. तो अब इंस्ट्रक्शन इज move P0, hash sign 07. What is P0? P0 is a SFR, special function register. It is a port register from where you can connect input or output device. So through that port you can read input or you can give output. So this 07 will be copied into port 0. For example, if we have connected LEDs to the port and all LEDs cathodes are connected to the P0 port. P0 has 8 pins. Now if I write P0, move P0, hash sign 00. So all cathode will get low. And if their anode is connected with the high, then all LED will becomes on. So you can make LED on with this simple instruction, move P0, 00. Or if anodes are connected with the port pin, then you can write move P0, hash sign FF, 0FFH. Mind well, F के आगे 0 लिखना है तो F0FFH. यहाँ पे याद रखो, जहाँ भी आप अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करते हो नंबर में तो उसके आगे आप 0 लिखना है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट मूव P0, हैश साइन A0 तो वो गलत बताएगा. आपको क्या लिखना है, मूव P0, हैश साइन 0A0 तो वो सही होगा. ठीक है. तो P0 क्या है, पॉट 0. यहाँ पे कितने पॉट है, 4 पॉट. तो यू कैन यूज़ मूव P0 और मूव P1 और मूव P2 और मूव P3. कौन से पॉट पे क्या कनेक्ट किया है ऐसे यू कैन यूज़ दैट पॉट. अगर एलईडी आपने P1 पे कनेक्ट की है तो आपको यहाँ पे P1 पॉट यूज़ करना है. आपने अगर कोई आउटपुट डिवाइस अनदर पॉट पे कनेक्ट किया तो आपको दैट पॉट यू हैव टू यूज. ओके. यहाँ पे अनदर इंस्ट्रक्शन वी हैव यूज मूव 20H, हैश साइन 05. सो यहाँ पे मैं 05 कहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, 20H में. 20H कौन क्या है, मेरा मेमोरी लोकेशन है रैम के अंदर. सो आप रैम के अंदर डेटा डाल सकते हो, SFR में डेटा डाल सकते हो, रजिस्टर में डेटा डाल सकते हो इमीडिएटली.
कॉपी कर सकते हो, या फिर एक्यूमुलेटर में डेटा कॉपी कर सकते हो। तो मैंने इमीडिएट मोड का 4 डिफरेंट अप्रोच बताया। ए में आप 20 कॉपी कर सकते हो, यस, नंबर उसमें कॉपी कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो, ए कॉमा हैश साइन। कोई रजिस्टर में मुझे डेटा लोड करना है, कैसे कर सकता हूँ, हैश साइन से कर सकता हूँ। R0 में डेटा कॉपी कर सकता हूँ, R1 में कर सकता हूँ, R7 में भी कर सकता हूँ। कोई भी पॉट, कोई भी SFI में यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कुछ मान लो कि DP टैब में डालना है तो मैं कर सकता हूँ। मुझे एसकॉन में कुछ कॉपी करना है, मैं कर सकता हूँ। P0 में कुछ कॉपी करना है, P1 में कुछ कॉपी करना है, मैं कर सकता हूँ यूजिंग हैश साइन। इमीडिएट डेटा में लोड कर सकता हूँ। यहाँ पे इंटरनल रैम में कुछ मुझे कॉपी करना है डेटा का, डायरेक्ट डेटा मुझे उसमें डालना है। मान लो कि 5 लोकेशन है, 20, 21, 23, 24, 25, सब में मुझे 5 डालना है। तो मैं लिखूँगा मूव 20H कॉमा हैश साइन 05, बाद में लिखूँगा मूव 21H हैश साइन 05। लाइकवाइज 20, 21, 22, 23 can be copied, can be loaded with the 05H. Okay. Now next is also some examples. यहाँ पे ए में 55 डाला है, उसके बाद ए का डेटा मैंने R0 में कॉपी किया है, और उसके बाद ए का डेटा मैंने R1 में कॉपी किया है। तो R0 में क्या आएगा, 55 आएगा, R1 में क्या आएगा, 55 आएगा। फिर मैंने R2 में ए डाला तो R2 में क्या आएगा, 55। सो दैट वे आई कैन कॉपी डेटा इनटू डिफरेंट रजिस्टर्स। Even I can load immediate data into register also, move R3 हैश साइन 95। सो ये मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेशंस है। तो आप ये स्लाइड देख सकते हो, उसके साइड में कमेंट्स भी है, तो क्या कॉपी होता है, किस में कॉपी होता है, वो सब लिखा हुआ है। तो आप ये साइड ध्यान से देख लो, और आप ये पूरा इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हो IDE में, IDE सिमुलेटर जो है उसमें, और फिर आप वहाँ पे भी रजिस्टर का कंटेंट क्या है वो देख सकते हो। सो आई रिकमेंड दैट कि आप ये सब प्रैक्टिस वो IDE के साथ करोगे तो आपका मूव इंस्ट्रक्शन पे आप थोड़ा उसमें एक्सपर्टाइज प्राप्त कर लोगे, और उसकी वजह से आप दूसरे इंस्ट्रक्शन इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे। आई हैव गिवन सम प्रैक्टिस लेसन्स ऑल्सो। मैंने यहाँ पे असाइनमेंट भी दिया हुआ है, तो आप होप कि आप वो असाइनमेंट करोगे, और असाइनमेंट जब आप कंप्लीट करोगे तो आपका उसमें थोड़ा एक्सपर्टाइज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन बताई है, मूव R0, R1। मूव A, B इज़ अ कॉमन इंस्ट्रक्शन। बी में से ए में डेटा कॉपी कर सकते हो। कोई भी 2 SFR आप यूज़ कर सकते हो, ए ने बी, हम SFR उसको SFR भी कहते हैं, ए और बी भी SFR के लिस्ट में आते हैं। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, क्योंकि ए एंड बी रजिस्टर आर यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड SFR। जो जनरल पर्पज नहीं है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स आर R0 to R7, A and B are special function registers. So any special function, for example move P0, P1, you can write like that। पॉट P1 से P0 में डेटा कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मूव R0 R1 लिखा है, वो इनवैलिड है। सो यू कैन नॉट राइट मूव R0, R1 और मूव R0, R2 और R2, R0 और R2, R7। ऐसा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो इनवैलिड है, क्योंकि उसको कंपाइलर सपोर्ट करता नहीं है। कोई भी कंपाइलर इस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर ऐसा करना है मुझे कि R1 का डेटा मुझे R0 में कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो इंस्टेड ऑफ R0 R1 आई कैन यूज़ एड्रेस मूव 00, 01। 00 किसका एड्रेस है, R0 का, अब 01 किसका एड्रेस है, R1 का। तो इंस्टेड ऑफ नेम इफ़ आई यूज़ एड्रेस, दैट इज़ परमिसिबल। तो मूव 00, 01 इज सेम एज मूव R0, R1। R0 और R1 की जगह पे आप 00, R0 की जगह पे 00 और R1 की जगह पे 01 लिख सकते हो, क्योंकि R0 का एड्रेस 00 है और R1 का एड्रेस 01 है। इट इज़ लाइक कि भाई मैं आपको नाम से बुलाऊँ या फिर नंबर से बुलाऊँ, ठीक है। मैं बुला तो आपको ही रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर नंबर से बुलाऊँ तो आप गलत मत सोचना कि भाई मुझे नंबर से क्यों बुलाते हैं।
नंबर से तो कैदी को बुलाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबको नंबर से बुलाते हैं। जेम्स बॉन्ड को 007 से बुलाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना R0 को कैसे बुलाते हैं, 00। R1 को कैसे बुलाते हैं हम, 01। सो R7 को कैसे बुलाओगे आप, 07। सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल, move 00, 01, that is same as move R0, R1, but that was invalid instruction, we can use this instruction. Also I have given one example, move 07, 03, यहाँ पे R3 का डेटा R7 में कॉपी होगा। So I have used two examples to explain that we can use address instead of register names. Okay, hope you understand this. यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, इट इज़ लाइक रिपीटेशन। तो आप अक्यूमुलेटर के साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हो, अक्यूमुलेटर में रजिस्टर से डेटा कॉपी कर सकते हो, अक्यूमुलेटर में डायरेक्ट मतलब मेमोरी से डेटा कॉपी कर सकते हो, अक्यूमुलेटर में इनडायरेक्ट डेटा भी कॉपी कर सकते हो, अक्यूमुलेटर में इमीडिएट डेटा भी कॉपी कर सकते हो, और रजिस्टर में अक्यूमुलेटर का डेटा डाल सकते हो। मूव RN, RN का मतलब है यहाँ पे R0 to R7, और RI का मतलब है R0 एंड R1, एस साइन का मतलब है इमीडिएट, एट द रेट का मतलब है इनडायरेक्ट मोड। ओके, नाउ आप मेमोरी के साथ क्या कर सकते हो, तो मूव डायरेक्ट कॉमाई, आप अक्यूमुलेटर से मेमोरी में डेटा कॉपी कर सकते हो। एग्जांपल इस मूव 30H, तो यहाँ पे अक्यूमुलेटर का डेटा 30H जो रैम लोकेशन है उसमें जाएगा। अनदर एग्जांपल इस मूव डायरेक्ट RN, तो यहाँ पे आप 30H, R0 लिख सकते हो। दोनों जगह पे हम रजिस्टर नहीं लिख सकते, R1, R0 नहीं लिख सकते, बट एक वन एड्रेस वी कैन यूज़, एक एड्रेस यूज़ कर सकते हो, एक रजिस्टर का नाम यूज़ कर सकते हो, वो परमिसिबल है। अगर मैं लिखता हूँ मूव 07, R5, दैट इज़ परमिसिबल, बट R7, R5 इज़ नॉट परमिसिबल। मूव डायरेक्ट, डायरेक्ट, तो आप एक एड्रेस में से दूसरे एड्रेस में भी डेटा डाल सकते हो। 40H का डेटा 30H में कॉपी कर सकते हो, या 30H का 40H में आप लिख सकते हो। यहाँ पे 40H का डेटा 30H में कॉपी होगा नंबर 3 इंस्ट्रक्शन में, जो ये इंस्ट्रक्शन है जो 40H, 30H, 40H, वहाँ 40H का डेटा 30H में, तो रैम के अंदर आप डेटा कॉपी कर सकते हो, एक रैम लोकेशन में से दूसरे रैम लोकेशन में आप डेटा कॉपी कर सकते हो। रैम के साथ आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी यूज़ कर सकते हो। मूव 30H, @R0, मानी R0 का कंटेंट जो एड्रेस है उसका कंटेंट, ठीक है ना, R0 में जो भी है उसका अंदर जो भी है वो, तो R0 पॉइंट टू द एड्रेस एंड एड्रेस हैज सम डेटा, वो 30H में कॉपी होगा। यहाँ पे ये एग्जांपल बताने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप मेमोरी के साथ कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन मूव के साथ यूज़ कर सकते हो। तो आप मेमोरी में रजिस्टर से कॉपी कर सकते हो, अक्यूमुलेटर से कॉपी कर सकते हो, या फिर दो मेमोरी लोकेशन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर एट द रेट इनडायरेक्ट मोड भी यूज़ कर सकते हो, इमीडिएट मोड भी यूज़ कर सकते हो कि 30H में मुझे 45 डालना है, तो 30H में अगर 50H डालना है तो मूव 30H, S एंड 50H, दैट इज़ ऑल्सो परमिसिबल। आप मेमोरी में सीधा डेटा लोड कर सकते हो, डायरेक्टली डेटा यू कैन लोड। तो मेमोरी में अगर मुझे 50 कॉपी करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और इनडायरेक्ट मोड में आप जो मैंने बताया था कि मूव A, @RI, उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, मूव @RI, जो अक्यूमुलेटर का डेटा भी आप इनडायरेक्ट मोड में कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझे पैसा देना है और वो आदमी को मैं नहीं जानता हूँ, पर जिग्नेश जानता है, जिग्नेश, तो जिग्नेश को मैं जानता हूँ, और मुझे जिसको पैसा देना है जिग्नेश उसको जानता है, तो मैं क्या करूँगा, जिग्नेश को बोलूँगा कि भाई ये जो पैसा है वो आप तुम्हारे उस दोस्त को दे दो जिसके पास से मैंने लिए थे। भाई मैं थोड़ा क्या है कि प्रामाणिक हूँ, तो अगर मैं उसको नहीं जानता फिर भी मैं पैसा लौटा दूँगा। मुझे पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो, पर ऐसा करना चाहिए कि आप जब ज़रूरत थी तब मैंने पैसे लिए थे, तो अब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसा नहीं लौटाऊँ, लौटा देना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो हम अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान हैं, तभी आपको कोई आपके ऊपर भरोसा करेगा। अब जब आपके ऊपर भरोसा करेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि भाई जो भी काम किसी के पास करवाया है तो उसका हमको बदला लौटाना है, ठीक है ना। यूज़ नहीं करना है किसी को, यूज़ करके थ्रो नहीं करना है, वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे करने वाले आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ते। एक बार आपके यूज़ में कोई आ जाता है फिर आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करते हैं, और फिर आपके पास दोस्त या फिर आपके भरोसे वाले आदमी कम हो जाते हैं और फिर आप अकेले पड़ जाते हो। सो ऐसा मत करना, ठीक है। ओके, सो इनडायरेक्ट एड्रेस में आप डेटा डाल सकते हो अक्यूमुलेटर से। इनडायरेक्ट एड्रेस में आप डायरेक्ट मतलब move@ri,30h में लिखता हूँ तो वो 30h में से इनडायरेक्ट एड्रेस में जाएगा, ठीक है। ऐसा डिफरेंट मोड मूव में दिए हुए, इसलिए मूव इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रक्शन। आप कैसे भी मूव यूज़ करके कहीं से भी डेटा ले सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, एक्सेप्ट दो रजिस्टर का नाम आप यूज़ नहीं कर सकते हो, R0,R1, R2,R3 ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हो। अदरवाइज ऑल मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर पॉसिबल विद द मूव इंस्ट्रक्शन। जो भी हमको डेटा जहाँ भी डालना है, जो भी मोड से डालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही इंस्ट्रक्शन यूज़ करो, क्योंकि आपको अगर ये इंस्ट्रक्शन आपको याद नहीं है तो आप वो ऑपरेशन अनदर 2 इंस्ट्रक्शन की हेल्प से 2 इंस्ट्रक्शन यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं एक इंस्ट्रक्शन की जगह पे 2 इंस्ट्रक्शन यूज़ करने से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि मुझे वो मोड याद नहीं है, बट अगर आपको याद है तो वो एक इंस्ट्रक्शन में ख़त्म हो जाएगा काम। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन लोड डेटा इनटू मेमोरी लोकेशन इनसाइड द रैम। रैम में आप डेटा ट्रांसफ़र कितनी तरह से कर सकते हो, देखिए ए में से कर सकते हो, रजिस्टर में से कर सकते हो, R0 to R7 से, फिर एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में डायरेक्ट से कर सकते हो, एग्जाम्पल 30,40H। आप इनडायरेक्ट मोड में से डेटा लेकर भी कोई एड्रेस में डाल सकते हो, ठीक है। इमीडिएट डेटा भी आप मेमोरी में रख सकते हो। अक्यूमुलेटर से इनडायरेक्ट मोड करके यूज़ करके भी मेमोरी में डेटा डाल सकते हो। यहाँ भी आप कोई भी एड्रेस में से डेटा इनडायरेक्ट मोड यूज़ करके भी कॉपी कर सकते हो, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स यू कैन यूज़। यहाँ पे वही एग्जांपल्स है, पर सेंटेंस जो आप दिए जाते हैं तो कभी कभी मुझे सेंटेंस समझ नहीं आता है, तो सेंटेंस को अगर आप इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आप माइक्रो कंट्रोलर को कुछ समझा सकते हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि मुझे ये करना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस यूज़ किए है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया है। तो आप सेंटेंस जो भी है तो उसको टास्क बोलते हैं, तो टास्क को इंस्ट्रक्शन में अगर कन्वर्ट करना हमको आता है तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग। जैसे कि इंग्लिश में अगर थोड़े वर्ड्स मुझे आ जाते हैं तो मैं थोड़ा कम्युनिकेट कर पाता हूँ। इंग्लिश में पहला स्टेप्स क्या होता है कि कुछ शब्द जानना, तो कुछ वर्ड्स मुझे आ जाते हैं तो फिर मैं इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अपना काम कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जो सेंटेंस में जो लिखा है वो करने के लिए अगर आप सही इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो तो उसका मतलब है कि आप प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप जानते हो। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है मूव द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर टू रजिस्टर 5। तो रजिस्टर 5 में अक्यूमुलेटर को कॉपी करना है, सिंपल है, मूव R5, ठीक है। जो देखो फर्स्ट आंसर इज मूव R5, मूव द कंटेंट ऑफ रैम 42H। रैम का एड्रेस क्या है 42, उसको कहाँ पे करना है कॉपी, कंटेंट को कहाँ पे मूव करना है, पोर्ट 1 पे। तो ये वी विल राइट मूव पोर्ट 1, पोर्ट 1 को क्या लिखेंगे P1, मूव P1 42H। यहाँ पे हैश साइन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 42 का कंटेंट डालना है, तो वो डायरेक्ट मोड है। तो P1 42H, दैट इज़ द सेकंड आंसर, मूव P1 42। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मूव द वैल्यू ऑफ पोर्ट 2। पोर्ट 2 को हम क्या बोलेंगे P2। मूव द वैल्यू एट पोर्ट 2 टू रजिस्टर 3, रजिस्टर 3 को क्या बोलेंगे R3। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव R3, P2। अब यू कैन राइट मूव 03, P2। R3 की जगह पे आप 03 लिख सकते हो।
द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेंड एफ एफ टू पॉट 0। पॉट 0 में हमें एफ एफ सेंड करना है। तो एफ एफ क्या है? मेमोरी लोकेशन है ना? मेमोरी लोकेशन नहीं है। एफ एफ क्या है? एफ एफ इज इमीडिएट डेटा। सो यहाँ पे हम हैश साइन यूज़ करेंगे, मूव P0 कॉमा हैश साइन। और देखिए आप यहाँ पे मैंने 0 यूज़ किया है, 0 एफ एफ, क्योंकि एफ इज़ अल्फ़ाबेटिक, तो अल्फ़ाबेटिक के आगे हमें 0 यूज़ करना है। नेक्स्ट इज सेंड द कंटेंट ऑफ रैम। यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया है। हुज एड्रेस इज़ इन रजिस्टर 1, तो R1 में एड्रेस है। और मेमोरी का कंटेंट हमें पोर्ट 3 पे डालना है, तो ये इनडायरेक्ट मोड है, क्योंकि मेरे पास एड्रेस नहीं है। पर एड्रेस किसके पास है? R1 के पास। सो @ R1 P3 में हम डेटा डालेंगे, क्योंकि पोर्ट 3 पे ले जाना है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल्स। ये जो 5 एग्जाम्पल है वो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए ये कि भाई अगर DPTR में हैश साइन करके, ये 5 सीक्वेंस में है और दिस 5 इंस्ट्रक्शंस आर इन सीक्वेंस। सो आगे का जो हम यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में याद रखना है। तो ये DPTR में क्या आएगा? इसमें 16 बिट नंबर आएगा। कौन सा आएगा? 0F200 आएगा या F200 आएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा F200। नेक्स्ट इज 35 कॉमा हैश साइन 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 35 के अंदर क्या आएगा? 45 का कंटेंट की 45? तो ये 45 आएगा 35 में, क्योंकि हैश साइन है तो 45 विल बी कॉपीड इनटू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं R0 35 लिखता हूँ तो R0 में क्या आएगा? तो आप आगे की इंस्ट्रक्शन में देखिए कि 35 के अंदर क्या है? 35 के अंदर 45 है, तो R0 के अंदर 35 का कंटेंट आएगा। तो 35 का कंटेंट क्या है? 45। सो नाउ आंसर इज 45H। R0 दिस थर्ड क्वेश्चन इन R0 द आंसर इज 45। कोई लिखता है कि 35 का कंटेंट, 35 का कंटेंट यहाँ पे नहीं लिखना है। हाँ, 35 का कंटेंट आता है, पर 35 का कंटेंट क्या है? 45। सो आंसर विल बी 45H। सो थर्ड आंसर इज 45H। मूव A, R0। अगेन आपने देखना है कि R0 के अंदर क्या है? R0 के अंदर 35 है, तो क्या एक्यूमुलेटर में 35 आएगा? नहीं, 35 नहीं आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मोड है। R0 35 को जानता है, 35 का कंटेंट 45 है, तो यहाँ भी एक्यूमुलेटर में क्या आएगा? 45। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये 5 जो इंस्ट्रक्शन है आप IDE सिमुलेटर में डाल के इसका आंसर देख लीजिएगा। ये ऐसे एक छोटा सा प्रोग्राम करके आप उसको उसमें कॉपी कीजिएगा और फिर आप एग्जीक्यूट कीजिए, सिमुलेट करके एग्जीक्यूट कीजिए स्टेप बाय स्टेप, और फिर आप देखिए कि 35 में क्या आता है, R0 में क्या आता है, एक्यूमुलेटर में क्या आता है। लास्ट क्वेश्चन इज मूव 45 35। ये डायरेक्ट डायरेक्ट है, तो 35 का कंटेंट क्या है? अगेन 35 का कंटेंट 45 है, तो 45H में क्या आएगा? 45 आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका आंसर भी दिया है, तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने इसके आंसर्स दिए हुए हैं, राइट। और वन मोर स्लाइड यहाँ पे है जो वर्कशीट है, तो मैं वर्कशीट यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है पूरे, तो इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, पर आप इसका ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने जो किया वो सही है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो आपको इतना प्रैक्टिस नहीं होगा जितना आप खुद करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसका ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई मुझे इंस्ट्रक्शंस आती है। अदरवाइज़ स्पून फीडिंग से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपको करनी है। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको बताए, आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हो। देखिए, मूव कॉपी, मूव देन कॉपी कॉपी कॉपी, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन मैं बताता हूँ आपको। सो इसे मैंने होल्ड किया है, तो आप लिख सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो।
Hope you understand this video. You hope you have enjoyed this video. And if you have any question, you have my number, right? So thank you for watching. इसके बाद मैं आगे आपको XCH इंस्ट्रक्शन और MOVX इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करूँगा। शायद अगर उसमें टाइम आप होगा तो मैं आपको पुश पॉप भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।